So, a very good morning to you all. This meeting is being recorded. Presenter Sri Alok B. Sharma, Chief Workshop Manager, Traction Motor Winding Workshop, Nasik Road, and his team. Sri Dinesh Reddy, Senior D, TRD Vijayawada, and his team, and all the participants who has joined this webinar. I welcome you all to this webinar. A warm welcome and a very good morning to you all. You all are aware that Nair is the alma mater of all the railway officers, and as Nair we are committed to impart knowledge and training to railway officials by organizing mandatory and special courses. Since its inception, multidisciplinary approach has been adopted to ensure overall growth of the railway officials. Earlier in Nair, we used to conduct Achiever series, wherein we invite the achievers from different fields and they address and motivate the training officials. Now at this time, we have our own in-house achievers who all have done very good work at their field. Their good works have been recognized by the Efficiency and Research Directorate of Railway Board. And here in Nair, by organizing this webinar, we are providing a platform wherein the achievers, the innovators can deliberate upon their good works for the overall benefit of the complete railways. This good works, these innovations have been done, recognized by Efficiency and Research Directorate. Now, with these deliberations, it can be implemented across the railways. So with this, I welcome once again you all to this webinar and will request Sri Alok, CWM Traction Motor Winding Workshop, to kindly introduce his team and start presenting his innovation, please. Good morning to all. I am Alok Sharma, CWM Nasik Road. I welcome all the participants who have joined this webinar. Such a good initiative by SPME and the entire Nair team. I thank them to give us an opportunity to TMW to present the innovation recently done by us. Before that, I would like to tell you that TMW was established in 1981 and they were engaged and they were allotted the works of TC traction motor armature repairing initially, especially TOW and Hitachi armatures and stators. The armatures were rewounded and the stators were given patch repair electrically, or in some cases they were completely rehabilitated and reshafting work were being carried out. Further, the rehabilitation of smoothing reactor was introduced in Nasik. They converted the old SL42 of lower capacity to the higher capacity SL30. They started the rehabilitation of Arno converters of conventional locomotives. Then, with the aging of DC locomotives, conventional locomotives, the three-phase locomotives came up across all Indian railways. And they were assigned the work of rehabilitation of their stators and rotors. Primarily, two types of locomotives are dealt here, and since this presentation is restricted to the innovations, I'll straight away come on the topic in which we have done some innovation in the rotors of three-phase traction motors. We have the capacity to manufacture new rotors. We are manufacturing around 300 new rotors and we are getting a regular railway board allotment. We have supplied these rotors to CLW and PLW also. Here it is an introductory video of Traction Motor Workshop. Welcome to the Traction Machine Workshop, located in Nasik Road,
where we specialize in the repair and rehabilitation of electrical equipment for traction rolling stock. Our singular goal is customer satisfaction. We set ourselves apart with an unwavering commitment to quality, reliability, and prompt delivery at minimum cost. At TMW, we uphold the highest standards, fully compliant with the requirements of international standards. Our management is dedicated to continuous improvement, ensuring not only meeting but exceeding expectations. Our vision is clear: to be a professionally competent, efficient, and environment-friendly workshop. We take pride in our work, offering repairs and rehabilitation for conventional and three-phase locomotive traction motors, as well as EMUs, optimizing manpower and resources while maintaining excellence in quality. Central to our ethos are our values, where adherence to established timelines and procedures for equipment rehabilitation and repair is paramount, guaranteeing that our customers receive nothing short of the best service. In the heart of Nashik Road lies a strategically designed wheel shop, meticulously planned to meet the demands of the railway industry. Equipped with cutting-edge technology, this facility is poised to cater not only to the Central Railway, but also to other zones within the Indian Railways network. It will manufacture brand new motorized wheel sets and provide expert repair services for electric locomotive wheel sets. Committed to upholding the highest standards of quality and reliability, this wheel shop aims to deliver excellence akin to the renowned traction motors of TMW. Traction Machine Workshop, where quality meets efficiency. Am I audible to all? Yes, sir. अब मैं हिंदी में कंफर्टेबल अगर रहेंगे तो हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। Yeah, sure. Any language will do. आप हिंदी में भी बता सकते हैं। थ्री फेज ट्रैक्शन मोटर 6 FRA 6068, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में यही ट्रैक्शन मोटर यूज हो रही है। बिफोर गोइंग टू द इनोवेशन कैरिड आउट बाय अस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस रोटर की न्यू मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ताकि हम उस इनोवेशन तक पहुंच सके जहां पर हमें अवार्ड मिला। उसके बारे में वहां तक जाते जाते मुझे उससे पहले आपको रोटर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इनिशियली रोटर V1 और V2 दो बिग वेल्डिंग डिजाइन और ब्रेज रोटर डिजाइन के होते थे, जो बाद में ऑब्सोलीट हुए टेक्निकल रीजंस से। करंटली थ्री फेज ट्रैक्शन मोटर्स में दो डिजाइन चल रहे हैं, स्कीम 1 एंड स्कीम 2। थर्ड वन द फिगर इज द स्कीम 1 डिजाइन एंड फोर्थ वन इज द स्कीम 2 डिजाइन। स्कीम 1 डिजाइन अलॉट किया गया है बोर्ड के द्वारा इसको नया बनाने के लिए, और स्कीम 2 CLW को, और CLW को पार्टली स्कीम 1 भी अलॉटेड है।
स्कीम 1 और स्कीम 2 में कुछ फर्क, स्कीम 2 में फेलियर्स थोड़े ज्यादा है, स्कीम 1 में थोड़े फेलियर्स कम है। तो स्ट्रेट अवे मैं स्कीम 1 पे ही आऊंगा, बाद में आप जब हम लोग इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे तब इनकी टेक्निकल चीजें और डिस्कस कर सकेंगे। नेक्स्ट जो स्कीम 1 रोटर के मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पर मैंने बताए हैं। सबसे पहले उसकी कोर की स्टैकिंग है, उसके अंदर शाफ्ट की प्रेसिंग, हाफ रिंग फिटिंग, देन देयर रोटर बार्स ऑफ जर्कोनियम कॉपर, देयर प्रेसिंग, रोटर बार की लेवलिंग, स्वेजिंग, ब्रेजिंग की तैयारी करना, इंडक्शन ब्रेजिंग करना रोटर बार्स की, उसकी टर्निंग और क्लीनिंग करना, उसकी इंडक्टेंस चेक करना, डायनामिक बैलेंसिंग करना और रोटर को फाइनली रेडी करना। इन स्टेप्स को कुछ पिक्चर्स की सहायता से देखना चाहेंगे। सबसे पहला है कोर की स्टैकिंग कैसे की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। एक फिक्सचर में लेफ्ट वाली फिगर में देखेंगे तो सारी कोर की स्टैंपिंग्स को एक डमी शाफ्ट के रास्ते डाला जा रहा है। इसमें एक कोर की हाइट मेंटेन करनी है हमको 470 ±5, और फाइनली इनको हाइड्रोलिक प्रेशर 45 टन के प्रेशर से प्रेस करके छोड़ दिया जाता है ताकि अपनी प्रॉपर शेप ले लें और प्रॉपर लेंथ ले लें। ये आपको थर्ड फिगर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसकी शाफ्ट की प्रेसिंग करनी है। जो रोटर की शाफ्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। उस शाफ्ट को इन कोर्स के अंदर डाला जाता है। इसके लिए इसको 200 डिग्री पर प्री हीट करते हैं 12 घंटे, और 45 टन प्रेशर पर शाफ्ट को प्रेस किया जाता है। इसके बाद इसकी हाफ रिंग्स की फिटिंग की जाती है, वो भी 45 टन प्रेशर पर, और 4 जगह उसमें वेल्डिंग टैग्स लगाए जाते हैं। अब जर्कोनियम प्रॉपर रोटर बार की प्रेसिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये रोटर के बार्स हैं जो अलग अलग स्लॉट्स में डाले जाते हैं हैमर के द्वारा। और ये बड़ा ही स्लो प्रोसीजर है और बड़ा ही डेलिकेटली इसको किया जाता है ताकि कोई भी रोटर का कोई भी अंग डैमेज ना हो। यू कैन सी दैट मैलेट, सॉफ्ट मैलेट। यहाँ पर सारे रोटर बार्स की लेबलिंग की जा रही है, और बीच में जो सेकंड फिगर में आपको स्वेजिंग दिख रही है। स्वेजिंग का मतलब ये होता है कि स्टैंपिंग्स को ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना, जिससे कि वो अपनी एक फाइनल जगह पर ही पड़ी रहे और किसी भी मूवमेंट और मोशन के समय आउट ऑफ अलाइनमेंट न जाए और हिले नहीं। इसके बाद इन रोटर बार्स को ब्रेस करके एक शॉर्ट सर्किट लूप बनाया जाना है। जैसा आपको पता ही होगा कि रोटर में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, केवल स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग के ईएमएफ इंडक्शन से ही रोटर रोटेट होता है, और इसके अंदर जो रोटर बार्स हैं वो उसको रोटरी मूवमेंट प्राप्त करते हैं, जिससे कि आपकी लोगों का व्हील घूमता है। इस पर एक एस्बेस्टस टेप लगाई जाती है और सिल्वर ब्लेजिंग फ्लक्स लगाया जाता है ब्रेजिंग के पहले। अभी जितने भी रोटर की बार्स डाल दी गई हैं तो इनके बीच में जो स्लॉट्स हैं वहां पर ये ब्रेजिंग की जा रही है एक एस्बेस्टस रिंग लगाते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बिफोर मॉडिफिकेशन है। इसमें राइट साइड में, राइट एक्सट्रीम में पेरीफेरी पर आपको एक एस्बेस्टस रोप दिख रही है, वहां पर एक इलेक्ट्रोड दिख रहा है, और ये इंडक्शन ब्रेजिंग मशीन के द्वारा वो सिल्वर कॉपर एलॉय को उसमें 800 डिग्री टेम्परेचर के आसपास उसको पिघला करके डाल रहा है। इसके बाद इसको फिनिश करने के लिए इसकी टर्निंग की जाती है, और टर्निंग करने के बाद में इसकी एक फिनिश्ड शेप आ जाती है जो आप सेकंड फिगर में देख पा रहे हैं। जहां तक के असेंबली का काम है वो लगभग इस समय पूरा हो जाता है कन्वेंशनल रोटर में। और इसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है इंडक्टेंस। रोटर की इंडक्टेंस को नापा जाता है इंडक्टेंस मीटर के द्वारा, और उसकी जो लिमिट है वो 15 माइक्रो हेनरी है। अगर वह इससे कम आ रही है तो इसको रिजेक्ट करके
वापस देखना पड़ता है कि कहीं पर हमारे प्रोसेस में कोई ना कोई मिस्टेक स्टैंपिंग में या रोटर बार डालने में हुई है। इसके बाद इसी रोटर की डायनामिक बैलेंसिंग की जाती है ताकि वह अनबैलेंस ना रहे। अनबैलेंस रोटर रहेगा तो डेफिनेटली ट्रैक्शन मोटर में वाइब्रेशन ज्यादा रहेंगे। अनबैलेंस रोटर ही ट्रैक्शन मोटर के बहुत सारे फेलियर्स का रीजन भी है। इसको 760 आरपीएम पर किया जाता है और 2 ग्राम का अनबैलेंस केवल परमिट किया जाता है दोनों एंड पर। ये एग्जिस्टिंग सिल्वर ब्रिजिंग एक्टिविटी है जो मैंने पहले भी दिखाई थी। इसके बाद हम लोग अपने मॉडिफिकेशन की तरफ चलेंगे। ये रेगुलर स्टैंपिंग है जहां पर उसका एंड क्लोज नहीं है जर्कोनियम रिंग का, और जो रेड एरो से बताया गया यहाँ से सिल्वर स्पिलेज होता है, जो सिल्वर स्लॉट्स में डाला जाता है वो यहाँ से स्पिल होता है। इस स्पिल ओवर को रोकने के लिए ही ये मॉडिफिकेशन टीएमडब्ल्यू ने किया है। इसमें जो स्टैंपिंग्स है आप लेफ्ट में देखेंगे तो सरकमफ्रेंस पर जो एंड आपको सरकमफ्रेंस पे दिख रहा है वो खुला है, इसके नीचे से रोटर की बार जाती है। इस मॉडिफिकेशन में जर्कोनियम कॉपर स्टैंपिंग के सरकमफ्रेंस को लास्ट में क्लोज कर दिया गया और ये केवल एंड की रिंग्स में ही किया गया ताकि उसमें सिल्वर रिटेन रह सके। नेक्स्ट, इस फिगर में आप देख सकते हैं पहले का और बाद का। बाद वाले में आप स्लॉट्स में आप देख सकते हैं कि वो जो रिंग्स है वो सॉलिड है, तो वहां पर अगर आप सिल्वर भरेंगे तो वो स्पिल नहीं होगा, जबकि पहले वाले में वही स्लॉट ओपन है। लेफ्ट वाली पिक्चर में जो 5वीं रोटर बार पर अगर आप ध्यान देंगे वहां पर आपको 4थी और 5वीं में दिखाई दे रहा है कि उसके पीछे के स्लॉट्स खुले हुए हैं और उसकी जो एंड स्टैंपिंग है वो भी ओपन है, जबकि राइट वाली फिगर में वो रिंग हमने मॉडिफाइड रिंग डाली है तो वो बंद हो गया है। तो पहले जब हम लेफ्ट वाली फिगर में इंडक्शन ब्रिजिंग से सिल्वर कॉपर एलॉय डालते थे तो वो स्पिलेज हो जाता था, जबकि राइट वाली फिगर में वो स्पिलेज होना बंद हो गया, जिससे बहुत सारी मटेरियल की सेविंग हुई है। ये आप देख सकते हैं जो ओल्ड प्रैक्टिस थी उसमें सिल्वर ब्रिजिंग किया जा रहा है और वो एस्बेस्टस रिंग वगैरह लगा करके और ब्रिजिंग की जा रही है। इसमें सिल्वर काफी सारा राइट साइड से गिरता है। जब इन्होंने रिंग को मॉडिफाई किया अब ये सिल्वर स्पिलेज बिल्कुल बंद हो गया है। इसके फर्दर आगे कैलकुलेशंस भी दिए गए हैं, आगे चलेंगे। जब हमने ये काम किया टीएमडब्ल्यू में तो इस प्रपोजल को आरडीएसओ भेजा गया। आरडीएसओ ने इसको पूरा स्टडी किया है। उसके बाद इस टेस्ट को टीएमडब्ल्यू में आरडीएसओ और सीएडब्ल्यू ने आकर के विटनेस किया और इसको टेक्निकली फिजिबल और बेनिफिशियल पाया गया। नेक्स्ट, इसके जो कुछ कैलकुलेशंस हैं हमारे पास में, इसमें जो ओरिजिनली जितना सिल्वर यूज होता था और मॉडिफिकेशन के बाद जो सिल्वर पर रोटर यूज होता है उसमें 340 ग्राम सिल्वर हम लोग बचा पा रहे हैं। इससे सेविंग लगभग 10,489 रुपीज की आती है और ब्रेजिंग की क्वालिटी काफी बेटर है। जो भी वित्त वर्ष समाप्त हुआ है उसमें अभी तक हमने 573 रोटर को मॉडिफाई किया है, से टोटल सेविंग करीब 60 लाख रुपए की हमें प्राप्त हो चुकी है। ये ईयर वाइज सेविंग्स है। इसको कार को पहली बार 2016-17 में किया गया, बाद में रेगुलर बेसिस पे 2020-21 के बाद से किया जा रहा है और वही करीब 60 लाख रुपए अभी तक हम सेव कर चुके हैं। इसको क्योंकि इसको आरडीएसओ ने अप्रूव कर दिया है तो अब स्कीम 1 डिजाइन के सारे रोटर में ये मॉडिफिकेशन होना है। और अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक लोको लगभग 1000 पर ईयर बनाए जा रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। वहां पर हम लोगों को एक पोटेंशियल सेविंग 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लगभग प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकती है यदि हम हर जगह स्कीम 1 का रोटर यूज करें।
ये इसका RDSO ने अप्रूवल दिया है सभी के लिए। CLW को भी बताया गया है कि आप इसको यूज करें। ये जो इस टीम को जो रेलवे बोर्ड ने अवार्ड दिया इनोवेशन का, वो हमारी 5 लोगों की टीम थी। मैं इस पर हमें कैश अवार्ड 3 लाख रुपीस का मिला बेस्ट इनोवेशन के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि मेरी टीम आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद दे आकर के वेरी क्विकली प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, माई सेम Good morning. assistant TMW सर। इस टीम में हम 5 जन थे और मैं लीडर था, बाकी मेरे 4 मेंबर से मैं बुकिंग करा। Good morning, sir. This Good is morning. SSC drawing. I was responsible for drawing of the new modified stopper stamping. Very good. गुड मॉर्निंग सर, मैं जितेंद्र कुमार है, टेक्नीशियन 1, ब्रेजिंग करते हैं सर। अच्छा, अभी मॉडिफाइड वाले में ब्रेजिंग करने में बड़ा आसानी होता होगा आपको। यस सर। नमस्ते सर, नमस्कार। मेरा नाम संजय यादव, मैं ब्रेजिंग का कार्य करता हूँ। सर, इट वाज द टीम। ये सर जो अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, इसका लेटर है। बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Now the forum is open for anyone to ask their queries, as the entire team is available. We have got some time here. I request all the participants to post their questions in the chat box. We will directly ask the team to respond to it. In the meanwhile, questions are being posted here. Alok ji, मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ for such a nice innovation. It's a very small thing, but it has a lot of repercussions. कितनी कॉस्ट की सेविंग हो रही है, काम कितना अच्छा हो रहा है, ब्रेजिंग की क्वालिटी इंप्रूव, all these things are there. अनुज जी, ये जो रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर, nowadays 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत कॉमन हो गया है। Yes, तो sir. ये जो आप लोगों का इनोवेशन है, क्या इसको बाकी जैसे CLW तो आपने बताया है, वो तो रेलवे का यूनिट है, वो करेगा ही करेगा। बाकी जैसे ओपन मार्केट है, आउटसाइड है, जहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के काफी ज्यादा यूज हो रहा है, क्या वहाँ पे भी सेम टेक्निक अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पे भी इस इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने का इसको? तो ये इम्प्लीमेंट हो गया है नई मोटर्स में। मैन्युफैक्चरर भी अभी यही मॉडिफिकेशन है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसको पेटेंट करवाइए फिर, तो मतलब your product, basically your brainchild, and it should definitely be patented by the name. Thank you. This only. As I can see that no questions are here. The topic is very nice and has been presented in a very good manner with the help of videos and elaborate presentations. The things are very clear. Probably that is why there is no question. Sir, one thing I would like to tell, sir. Yeah, please. हमारे यहाँ 2018-19 में एक व्हील शॉप सैंक्शन हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। लोगों का आजकल बहुत क्राइसिस है, तो वो व्हील शॉप हमने कमीशन करी। स्टेट ऑफ द आर्ट है, कभी भी नायर हॉल अपने ट्रेनिंग्स को विजिट करा सकते हैं सर। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के अब सारे व्हील्स मोटराइज्ड व्हील सेट भी बनाने लगे हैं, और डीजल व्हील सेट का भी हमें ऑर्डर मिला है, और 100 लोकोस की RSP भी अभी नए मोटराइज्ड व्हील सेट की मिलने वाली है, और इवन वैगन के लोग भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं अपने व्हील्स के लिए। बिल्कुल, थैंक यू आलोक जी। Whenever that kind of opportunity creates here, we'll definitely send our trainees to your workshop for first-hand experience of all these innovations as well as that new wheel shop. Okay, welcome, sir. With this, I will extend my
Sincere thanks to Alok for giving a nice presentation. Now we will move to that second presentation of nice and wonderful innovation. And with this, we came to this end of this webinar. I sincerely thank Sri Alok P. Sharma, Chief Workshop Manager, TMW Nasik Road, and Sri Dinesh Reddy, Senior TRD Vijayawada, for giving a wonderful presentation. Presentation was very elaborative. It has videos and all the things available there, and I am sure that all the participants get benefited out of it, and will definitely make an effort to implement these innovations at their work area. So once again, thank you very much. Thank you, sir. Good day, sir.